Hello everybody, welcome to the fourth edition of Numericals on Magnetic Effects of Current. कुछ क्वेश्चंस आज हम करेंगे टॉरॉइड के दो तीन क्वेश्चंस और क्वेश्चंस ऑन चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो शुरू करते हैं. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. A coil wrapped around a toroid has inner radius 20 centimeter and an outer radius 25 centimeter. टॉरॉइड जो होता है इट्स अबाउट लाइक दिस. ये अगर सेंटर मान लें दैट्स इनर रेडियस एंड दिस इज आउटर रेडियस. द इनर रेडियस इज 20 centimeter and the outer radius is 25 centimeter. अब इस टॉरॉइड में अगर करंट फ्लो करें तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. क्वेश्चन इज द वायर wrapping makes 800 turns. Number of turns, how much? 800. And carries a current of 12 amperes. Carries a current of 12 amperes. What are the maximum and minimum values of magnetic field within the toroid? Maximum and minimum values of the magnetic field within the toroid. Toroid की magnetic field का formula for magnetic field of a toroid mu naught I n by L. mu naught I n by L. I the current, n number of turns, L length of the toroid. ये लेंथ मतलब 2 पाई आर. डेफिनेटली ये रेडियस छोटा है और ये रेडियस बड़ा है. तो B max maximum value of magnetic field mu naught I n by 2 pi r1, the inner radius, smaller radius. वैल्यूज अगर प्लेस करें तो 4 पाई 10 is to power minus 7, current is 12 ampere, number of turns 800, 2 pi r 20 into 10 is to power minus 2. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे. B will be equal to, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा और ये 10 से ये कैंसिल हो गया, ये -5 रह गया और एक 0 -4 रह गया, 96. तो 9.6 4 था ना इंटू 10 is to power -3 टेस्ला. ऑब्वियसली कैलकुलेशंस में कुछ नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन दिस, नो ट्रिक्स इन्वॉल्व, सीधी सीधी कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं. यस, एंड दैट्स द मैक्सिमम फील्ड. ओके, अगर मिनिमम फील्ड निकालनी हो, मिनिमम तो उसके लिए फॉर्मूला mu naught I n by 2 pi r2. I hope this is clear to everybody. So V will be equal to 4 pi 10 is to power minus 7, current 12 ampere, number of turns 2 pi or radius 25 centimeter. मैक्सिमम फील्ड के लिए इनर रेडियस लेंगे, मिनिमम फील्ड के लिए आउटर रेडियस लेंगे. द वैल्यू कम्स आउट टू बी 7.68, 10 is to power minus 3 Tesla. So that's maximum field and this is minimum. वेरी इजी क्वेश्चन. बस ये कंसेप्ट ध्यान में रहना चाहिए क्योंकि सेंटर से अगर देखें तो इसका डिस्टेंस और इस एंड का, एक स्प्रिंग अगर ऐसे बेंड कर दें तो जो इनर साइड होगी स्प्रिंग की और जो आउटर साइड होगी, दोनों का सेंटर से डिस्टेंस अलग अलग होगा. तो ऑब्वियसली फील्ड भी दोनों जगह डिफरेंट हो सकती है. वी नीड टू टेक इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस. अगर मैक्सिमम और मिनिमम की बात ना हो रही होती, सिंपली एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी होती, तो फिर हम एवरेज रेडियस निकालते हैं, एवरेज ऑफ द टू रेडियस. आई होप दिस इज क्लियर. That takes us to the next question.
Question says a toroid has a core of inner radius 25 centimeter and outer radius 26 centimeter. तो एवरेज कितना आ गया 25.5 centimeter. It has 3500 turns. Number of turns 3500. So the question says a toroid has a core of a non-ferromagnetic material of inner radius 25 centimeter and outer radius 26 centimeter, around which 3500 turns of a wire are wound. If the current in the wire is 11 ampere, current in the wire is 11 ampere, what is the magnetic field outside the space surrounded by the toroid, inside the core of the toroid, in the empty space surrounded by the toroid? Oh, डायग्राम बनाते हैं, छोटा डायग्राम बना लेते हैं टोरॉइड के लिए. यस, इनर और आउटर रेडियस दिया तो हमने एवरेज रेडियस निकाल लिया, इससे लेंथ फाइंड करेंगे. फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड? आउटसाइड इज 0. ए पार्ट का आंसर. बी पार्ट, field inside the core of the toroid. Field inside the core of the toroid mu naught I n by n, और L किसके इक्वल होगा 2 pi r के इक्वल. तो 4 pi 10 raised to power minus 7. Current is how much? Current is 11 ampere. This is 11 ampere. Number of turns 3500 and 2 pi into 25.5 meters में convert करना है. The value comes out to be 0.03 Tesla. तो इस क्वेश्चन की खासियत, आपको रेडियस कितना लेना है ये ध्यान रखना. पिछले क्वेश्चन में मैक्सिमम और मिनिमम फील्ड चाहिए थी. मैक्सिमम फील्ड के लिए इनर रेडियस और मिनिमम फील्ड के लिए आउटर रेडियस को यूज किया था हमने. यहाँ ऐसा कुछ नहीं, जनरल क्वेश्चन है, फाइंड द फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ अ टोरॉइड. तो एवरेज रेडियस कितना होगा ये लेंगे. एक ही रेडियस दे रखा होगा किसी क्वेश्चन में तो सिर्फ वही रेडियस लेंगे. ठीक है जी, दैट्स बी पार्ट. एंड फाइनली द सी पार्ट. क्वेश्चन इज इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड. यहाँ कितनी होगी फील्ड? यहाँ भी कितनी होगी? 0. सिर्फ कोर के अंदर होगी, इस रीजन के अंदर. यहाँ 0 होगी, बाहर 0 होगी. इनफैक्ट दिस इज आउटसाइड द टोरॉइड, कॉइल ऑफ द कोर ऑफ द टोरॉइड. ठीक है, इजी क्वेश्चन. दैट टेक्स अस टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज in a chamber a uniform magnetic field of 6.5 Gauss. 6.5 Gauss. Gauss कितना होता है? 10 raised to power minus 4 Tesla is maintained. An electron shot into the field with a speed of 4.8 into 10 raised to power 6 meter per second, normal to the field. Explain why the path of the electron is circle and determine the radius of the circular orbit and the frequency of electron. Why the path is circular? पहला क्वेश्चन. जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा, whenever a charged particle moves perpendicular to a magnetic field, it experiences force. Now the force acting is also perpendicular to the direction of motion of the electron. Force is perpendicular to the direction of motion of the electron. और फोर्स कभी भी मोशन के परपेंडिकुलर अगर होगी, path is always circular. The force acts as centripetal force. इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास हमें मालूम है. रेडियस mv by qb. Radius is mv by qb. वैल्यूज प्लेस करेंगे. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1, 10 is to power minus 31. Speed is given 4.8, 10 is to power 6 by
charge of electron 1.6 10 is to power minus 19 and magnetic field 6.5 into 10 is to power minus 4. कैलकुलेशंस कुछ खास मुश्किल नहीं है, ये 3 आ जाएगा, 13 5 13 7 21/5 that's equal to 4.2. और बाकी सारा चेक कर लेते हैं कितना बना, 19 23 and 6 29 into 10 is to power minus 2 मीटर यानी 4.2 सेंटीमीटर. ठीक है. frequency of a charge moving in a circular path in a magnetic field QB by 2 pi m. Q the charge of electron, magnetic field given 6.5 10 is to power minus 4 2 pi 3.14 into m mass 9.1 into 10 is to power minus 31. The frequency comes out to be 18 megahertz approximately. 18 into 10 is to power 6. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अगर हमें फॉर्मूले ध्यान में हो तो क्वेश्चन इजीली किए जा सकते हैं. अच्छा, एग्जाम में लाइक बोर्ड एग्जाम जो होता है, किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, सीबीएसई का हो, आईसीएसई का हो, जितने भी क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल्स पर्टिकुलरली, इफ यू गेट अराउंड 8 न्यूमेरिकल्स तो 6 ऑफ देम 5 और 6 ऑफ देम दे आर फॉर्मूला बेस्ड. 2 या 3 ऐसे होते हैं जिनमें कंसेप्ट अप्लाई करते हैं. हम यार स्केर्ड ऑफ द न्यूमेरिकल्स, रीजन हमें फॉर्मूला ही ध्यान देंगे, फॉर्मूले याद किए हैं, कंसेप्ट ध्यान में रखे जाए तो न्यूमेरिकल्स ज़्यादा मुश्किल नहीं रहते. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, a chamber is maintained at a uniform magnetic field. Chamber is maintained at a uniform magnetic field of 5 into 10 is to power minus 3 Tesla. Sorry. An electron with a speed of 5 into 10 is to power 7 meter per second. 5 into 10 is to power 7 meter per second enters the chamber in a direction normal to the field. Calculate the radius and the frequency. Same question. तो R equal to अभी किया ना. अब जब एक बार कर लिया फिर दोबारा करने का क्या फायदा है, बार बार करते हैं तो फॉर्मूले याद हो जाते हैं. We tend to remember them. और फॉर्मूले याद होंगे तो इसके बाद आगे न्यूमेरिकल्स इजी लगते हैं. मास, इलेक्ट्रॉन की ही बात हो रही है. Speed 5 into 10 is to power 7, charge 1.6 10 is to power minus 19, magnetic field 5 into 10 is to power minus 3, and that gives the radius equal to 5.7 centimeter. Same way, magnetic field, frequency QB by 2 pi m. So Q charge on an electron, magnetic field 5 into 10 is to power minus 3 2 pi कितना था 3.14. mass of electron 9.1 10 is to power minus 31. The value comes out to be 1.4 into 10 is to power 8 hertz. कुछ ट्रिकी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट अप्लाई करना. ठीक है जी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक्स नहीं इन्वॉल्व है. फॉर्मूला ही अगर याद नहीं है डेफिनेटली इट्स वेरी डिफिकल्ट. फॉर्मूला याद है तो इट्स एन इजी क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल. यस, an electron after being accelerated through a potential difference of 10 is to power 4 volt enters a uniform magnetic field of 0.04 Tesla perpendicular to its direction of motion. Calculate the radius of
the curvature of its trajectory. Now this is better question, क्योंकि एकदम डायरेक्ट नहीं होगा, कुछ पता होना चाहिए पहले से, तभी सॉल्व कर पाएंगे. कोई कंसेप्ट ऐसा, electron is accelerated using this potential. So when it gets accelerated, now it acquires some speed, and a charge moving through a magnetic field but in a perpendicular direction will follow a circular path. पहले वाले क्वेश्चंस जो किए हमने, पिछले दो क्वेश्चंस, उनमें दे रखा था स्पीड कितनी है. यहाँ स्पीड नहीं दी है. वी आर गिवन कि 10⁴ volt of potential has been used to accelerate the electrons. तो स्पीड हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी. क्वेश्चन सॉल्व करने के दो तरीके हैं. गिव यू द इजीियर वन. अगर इतना पोटेंशियल अप्लाई किया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड और अप्लाइड इज क्यूबी. पोटेंशियल की वजह से कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी. और इससे मोशन में आएगा इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, which is q² v² r² by 12. That's the main concept. अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है तो अब ये भी समझाएं. ओके, देखो ध्यान से. नेगेटिव पोटेंशियल और इधर पॉजिटिव पोटेंशियल. जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. नाउ यू प्लेस एन इलेक्ट्रॉन, क्या होगा? मूव करेगा. यस, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से पोटेंशियल एनर्जी दी है हमने, अब इसे मूव करेगा. कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा Q into E, और मैग्नेटिज्म में काइनेटिक एनर्जी q² v² r² by 12. R कितना होगा हमें कैलकुलेट करना है. आई होप इट्स क्लियर. इस मूविंग इलेक्ट्रॉन पर अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर, पाथ कैसा हो जाएगा? सर्कुलर. सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होगा हमें ये कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो if you apply potential difference, the electron gets accelerated, it comes into motion, has some kinetic energy. तो potential energy equal to kinetic energy. R किसके इक्वल होगा? चेक कर लेते हैं. 2mqv by q² v². ठीक है, 2mqv, तो q से q कैंसिल हो गया, बाकी तो वैल्यूज ही रह गई. 2 into mass of electron और potential difference applied 10⁴. charge of electron 10⁻⁻⁹. magnetic field 0.04 Tesla, and this value comes out to be 8.3 millimeter. सॉल्व करेंगे इसको. 8.3 into 10⁻⁻³ meters और 8.3 millimeters. आई होप इट्स क्लियर. पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर सकते हैं, ये एक बार हम अलग से समझाना चाहेंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत जगह यूज होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में हो सकता है, आगे कुछ चैप्टर्स में भी हो सकता है. यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल अज्यूम करें और यहाँ पर पॉजिटिव. वी हैव टू प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया. अब यहाँ बीच में इलेक्ट्रॉन प्लेस किया. नेगेटिव प्लेट है, रिपेल करेगी, इधर मूव करेगा. पॉजिटिव होता तो इधर मूव करता, नेगेटिव है तो इधर मूव करेगा. क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इलेक्ट्रॉन अगर प्लेस करेंगे इधर मोशन में आ जाएगा. यानी पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई की कितनी? क्यूबी, और उससे इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई कितनी? ½ mv². दो फॉर्मूले यूज कर सकते हो, क्यूबी इक्वल टू ½ mv² या q² v² r² by 12. ध्यान रहे, this v is velocity and this v is potential. Potential energy equal to kinetic energy. Potential energy equal to kinetic energy. ठीक है. तो क्वेश्चन में जो हम कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं कि हाउ एन इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्सेलरेटेड विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल, इस डायग्राम से बड़े इजीली समझ सकते हैं. प्लेस एन इलेक्ट्रॉन
obviously the negative plate is going to repel this, so it will come into motion. मोशन में आ गया, हम कहेंगे एक्सेलरेट हो गया. और पोटेंशियल एनर्जी जो अप्लाई किया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, उससे इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इन मैथड्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज दैट an electron beam passes through a magnetic field. This is very good question जो आप करने जा रहे हैं. An electron beam passes through a magnetic field of 2 into 10 raised to power minus 3 Tesla and an electric field of 3.4 into 10 raised to power 4 volt per meter, both acting simultaneously. If the path of electron remains undeviated, calculate the speed of the electron. And if the electric field is removed, then what will be the radius of the circular path? दो क्वेश्चन हैं, दोनों इम्पोर्टेंट हैं. लेट मी एक्सप्लेन यू. वी हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ हमने पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल दिया है, तो फील्ड अप्लाई हो गई. इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहे हैं, पढ़ाई हमने पहले भी, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट हो जाएगा. पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव की तरफ होगा. बट हियर इन द क्वेश्चन वी आर गिवन इलेक्ट्रॉन, सो इट एक्सपीरियंसेस फोर्स एंड गेट्स डेविएटेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट. नाउ if we apply a magnetic field so that it experiences an equal force in the downward direction, then it will go undeviated. यानी एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए कुछ इस तरह से कि इतनी ही मैग्नेटिक फोर्स नीचे को एक्ट हो जितनी ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट हो. बोथ बीइंग इक्वल एंड अपोजिट, द इलेक्ट्रॉन विल गो अनडेविएटेड. तो चेक करते हैं. चार्ज पार्टिकल अगर इधर मूव कर रहा हो, फील्ड इनवर्ड लगा दें तो फोर्स ऊपर को लगती है. पॉजिटिव चार्ज अगर इधर मूव कर रहा हो और फील्ड इनवर्ड हो तो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन. द नेगेटिव विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इस पर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो, उसके लिए क्या करेंगे, एक इनवर्ट फील्ड लगाएंगे. दिस इज द मोशन. पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स ऊपर, नेगेटिव पर नीचे. क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस के बारे में कुछ नहीं पूछा हुआ है, तो हम डायरेक्शन एक्सप्लेन ना भी करें तो चलेगा, बट ये समझ में आना बहुत जरूरी है. बोथ फोर्सेज दे मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट. इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स E into E और मैग्नेटिक फोर्स EBB sin 90, Q into E इक्वल टू QVB sin थीटा. E से ही कैंसिल हो गया, sin 90 1 होता है. V द वेलोसिटी इक्वल टू E by B. E कितना था, 3.4 into 10 raised to power 4 और B कितना है, 2 into 10 raised to power minus 3. The value comes out to be 1.7 into 10 raised to power 7 volt per meter. ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, क्या निकाला हमने, स्पीड, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्पीड निकाली है ना. स्पीड अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दें तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड रह जाएगी. इफ यू रिमूव द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या रह जाएगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड. और कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर मूव करे तो पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर. रेडियस कितना होगा सर्कुलर पाथ का, mv by qb. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 raised to power minus 31. स्पीड आ गई 1.7 10 raised to power 7. चार्ज इज 1.6 10 raised to power minus 19. Magnetic field 2 into 10 raised to power minus 3. The radius of the circular path comes up to be 4.8 into 10 raised to power minus 8 meter. सेकेंड पार्ट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन उसको फाइंड करने के लिए हमें स्पीड चाहिए होगी. स्पीड हम उस पार्ट से कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी को यूज करें. दिस इज द स्पीड विद व्हिच द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग थ्रू दीज टू फील्ड्स. नाउ वन ऑफ देम इज रिमूव्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिमूव्ड. मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पाथ सर्कुलर होगा. रेडियस क्या होगा, mv by q. चलिए आगे बढ़ते हैं. दैट टेक्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सवाल. We are given a cyclotron's oscillator frequency is 10 megahertz. Frequency of a cyclotron 10 megahertz. Mega होता है 10 raised to power 6. What should be the operating magnetic field to accelerate protons? And if the radius of the d is
60 सेंटीमीटर, व्हाट्स द काइनेटिक एनर्जी? रेडियस अगर 60 सेंटीमीटर हो 0.6 मीटर तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये भी कैलकुलेट करना। फ्रीक्वेंसी दी हुई है प्रोटॉन की, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्वेश्चन में ध्यान दें। A cyclotron's oscillator frequency is 10 megahertz. What should be the operating magnetic field for accelerating protons? And if the radius of the disk is 60 centimeter, what's the kinetic energy of the proton being produced by the accelerator? आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करना है, तो जरा ध्यान दे रहे हैं। फ्रीक्वेंसी QB बाय 2 पाई m, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10 इंटू 10⁻6। क्यू द चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 10⁻⁻19 कूलम। पी हमें कैलकुलेट करना है, पाई 3.14 होता है। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻27। This gives us the value of B, which is 0.66 टेस्ला। क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है जिससे हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करनी है। ध्यान दिया जाए, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी Q square B square R square by 2m. So this kinetic energy will be 1.6 10⁻⁻19 square B 0.66 अभी कैलकुलेट किया हमने, रेडियस 0.6 स्क्वायर बाय 2 इंटू m 1.67 10⁻⁻27। ये आंसर जूल में आएगा। एनर्जी ऐसा यूनिट्स यूज किया तो दिस एनर्जी विल बी इन जूल। अगर इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दें। ये जो आंसर आया ये जूल में होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दें। मेगा इलेक्ट्रॉन के लिए 10⁻6 से डिवाइड कर दें। Now we'll get this kinetic energy in mega electron volt, 7.4 mega electron volt। ठीक है जी, वेरी इजी। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं, आखिरी का स्टेप इंपॉर्टेंट है, हाउ टू कन्वर्ट दैट यूनिट फ्रॉम जूल टू मेगा इलेक्ट्रॉन। दैट टेक्स अस टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड। An electron emitted by a heated cathode and accelerated through a potential difference of 2000 volt. Electron is accelerated by 2000 volt potential and enters a region of a magnetic field of 0.15 Tesla. Determine the trajectory of the field if trajectory of the electron if the field is transverse to its initial value. रेडियस कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। R इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी, तो R इक्वल टू 9.1 10⁻⁻31 स्पीड। ओके यस, यहाँ हमें ये ध्यान देना है। पोटेंशियल अप्लाई किया है तो पोटेंशियल एनर्जी और Q square B square R square by 2m। Q से Q कैंसिल हो गया तो R will be equal to √2mb by QB square by QB square। yes, 2mb by QB square, ये R की वैल्यू आ जाएगी रेडियस की, तो 2 9.1 10⁻⁻31। पोटेंशियल कितना दे रखे हैं 2000 बाय क्यू 1.6 10⁻⁻19। मैग्नेटिक फील्ड इतनी, द वैल्यू कम्स अप टू बी 1 मिलीमीटर। सॉल्व करें इसको तो आंसर क्या आएगा 1 मिलीमीटर। पोटेंशियल से जब भी हम एक्सेलरेट करेंगे तो वी आर गिविंग पोटेंशियल एनर्जी।
will be equal to kinetic energy. Kinetic energy can be half mv square or in magnetism it can be q square p square r square by 12. बेटर वे इसको अप्लाई किया जाए, कैलकुलेशंस कम रहेंगी, एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ द रेडियस। ठीक है, ये समझ आ गया। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज मोर इंपॉर्टेंट। If the electron trajectory makes an angle of 30 degrees with the initial velocity, if the magnetic field makes an angle of 30 degrees with the path of electrons, ये आखिरी पॉइंट समझने का। आई एम कंसिडरिंग बोथ द केसेस, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं, तो ये भी है, ये भी है, ये एंगल थीटा दे रखे हैं, ये भी cos थीटा, ये भी sin थीटा। R will be equal to mv by qb। इस फॉर्मूले से निकालें या जो अभी हमने किया था उससे निकालें, R की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, या तो इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, इसमें v की वैल्यू प्लेस कर देंगे तो R आ जाएगा, और R इस मेथड से या जो हमने यूज किया उससे सेम रिजल्ट है। अगर इस तरह से जाता, अब फॉर्मूला क्या होना चाहिए, R इक्वल टू एम वी साइन थीटा बाय क्यू। ये वेलोसिटी v है, ये कितनी है, v साइन थीटा। सर्कुलर पाथ इस कंपोनेंट की वजह से होगा, सर्कुलर पाथ इस कंपोनेंट की वजह से होगा, और ये कंपोनेंट क्या है, v साइन थीटा। तो एम वी बाय क्यू बी इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा, थीटा कितना है 30, ये हमने कैलकुलेट किया 1 मिलीमीटर, तो 1 इंटू हाफ इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। ठीक है जी।